Good morning, students. First of all, you all are welcome in your new class in class 2. I am here to start first chapter of your English textbook. The title of the chapter is Promise. Before starting this chapter, I would like to suggest, please read the chapter line by line carefully and make a list of hard words with their meaning in your notebook. Now we start the chapter. Before that, let us know meaning of some hard words used in this chapter. The first word is promise, because the title of this chapter is promise. So we should know the meaning of promise. A promise is a written word or spoken statement or agreement that you will or will not do something. किसी काम को करने या नहीं करने के लिए लिखित रूप में या बोलकर दिया हुआ वादा, स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग प्रॉमिस कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज साइन बोर्ड. वेरी सिंपल, इट इज नोटिस बोर्ड. साइन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड. वेज, वेज मीन्स फ्लावर पॉट. व्हाट इज फ्लावर पॉट? विच वी कीप to decorate our house, our dining room, our table. Okay. Next word is pluck. Pluck means to break. To break. तोड़ना. जैसे हम लोग फूल, पत्ती वगैरह को तोड़ते हैं, मीन्स यहाँ तोड़ना. That is the pluck. Okay. The next is garden. Next word is garden. Garden. It is a piece of land next to a house where fruits, flowers and vegetables are grown. घर के आसपास वैसा ज़मीन, वैसा जगह जहाँ पे फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लगाया जाता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जनरली गार्डन कहते हैं. ओके. नाउ सी द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर. It contains a picture of a garden. It contains a picture of a garden. In this picture, you can see various type of trees, flowers and other things. आप इस पिक्चर में देखोगे कि बहुत तरह के पेड़ हैं, बहुत तरह के फूल हैं और भी बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें. Before starting the story, you have to make a list of various types of fruits, flowers and other things which you can see in the given picture. आपको जो यहाँ फर्स्ट पेज में, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में जो पिक्चर दिया हुआ है गार्डन का, उसमें से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर थिंग्स आर present, you have to write the name of all these things. You can see apple tree, you can see mango tree, you can see grapes, you can see marigold, you can see sunflower, rose, swing, duck, pond, okay, sun, mountain, butterfly. Lots of things you can see in this picture. Okay, you have to write down in your notebook. You have to write down all names of all these things in your notebook. Okay, now we come to the story of this chapter. Now we come to the story of this chapter. This story belongs to a girl. In this story, it is a girl named चीना. एक इस कहानी में कौन होती है? एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या होता है? चीना. ओके. हु लव्स फ्लावर्स. हु लव्स फ्लावर्स. वो फूल को बहुत पसंद करती है. बट सी हैज अ बैड हैबिट ऑफ प्लकिंग द फ्लावर्स. लेकिन उसके पास एक बुरी आदत होती है. वो क्या है? फूलों को तोड़ना.
फूलों को तोड़ना। सी द स्टोरी। चीना लव्स फ्लावर्स। चीना लव्स फ्लावर्स। चीना फूल पसंद करते, फूलों को बहुत पसंद करती है। सी लव्स रेड फ्लावर्स, सी लव्स येलो फ्लावर्स, सी लव्स blue and pink flowers. She also loves orange and purple flowers. In short, we can say that she loves means all types of flowers. She loves all types of flowers. She loves flowers very much. बहुत पसंद करती है फूलों को देखना, फूलों को, फूल जो है उसे बहुत पसंद है। सी लव्स फ्लावर्स वेरी मच। सी लव्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन ऑल कलर्स। ऑल मीन्स फ्लावर्स इन ऑल कलर्स सी लव्स। वंस एक बार चीना वॉक्स टू द पार्क नियर हर हाउस। चीना वॉक्स टू हर पार्क नियर हर हाउस। एक बार चीना अपने घर के पास के पार्क में टहल रही होती है, टहलती है। ओके। द साइन बोर्ड इन द पार्क सेज। उस पार्क में एक साइन बोर्ड होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है। व्हाट वाज रिटन इन दैट बोर्ड? दैट इज डू नॉट प्लक फ्लावर्स। डू नॉट प्लक फ्लावर्स। व्हाट डज साइन बोर्ड सेज? व्हाट डज साइन बोर्ड सेज? डू नॉट प्लक फ्लावर। उस नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि फ्लावर को नहीं तोड़ना है, फ्लावर को नहीं तोड़ना है। हाउएवर चीना लव्स टू प्लक फ्लावर्स। चीना लव्स टू प्लक फ्लावर्स। अर्लियर आई टोल्ड यू चीना loves flowers but she has a bad habit of plucking the flowers. उसके पास फूलों को तोड़ने की एक बुरी आदत थी। And put them in a vase in her house. What does she do with these flowers? What she plucks from the garden or from the park? She puts them in a vase. In a vase means flower pot. उसके मतलब अपने घर के फ्लावर पॉट में उन सारे फूलों को तोड़ने के बाद उस फ्लावर पॉट में रख देती है, सजा देती है। सी लव्स सीइंग देम ऑन हर टेबल। उसके टेबल पे मतलब ये फ्लावर पॉट होना चाहिए, ये उसको पसंद करती है। सी लव्स सीइंग देम ऑन हर टेबल। अपने टेबल पे जो उसके द्वारा तोड़ा गया फ्लावर्स होता है उसको देखना वो पसंद करती है। सी प्लक्स फ्लावर्स वेर एवर सीज देम। जहाँ भी वो फूल देखती है उसको क्या करती थी? तोड़ लेती है। जहाँ भी वो सी प्लक्स फ्लावर्स वेन एवर सी सीज देम। जब भी वो कोई फ्लावर देखती है, वेन एवर मीन्स जब भी, वेर एवर मीन्स जहाँ भी। ओके। वेन एवर सी सीज देम, जब भी वो फ्लावर्स को देखती है वो क्या करती है? तोड़ लेती है। ओके। वन डे, एक दिन, वन डे चीना गोज टू द गार्डन विथ अ बास्केट। विथ अ बास्केट, एक बास्केट लेकर वो एक गार्डन गई। कहाँ गई? सॉरी, कहाँ जाती है? गार्डन जाती है। बास्केट लेकर जाती है तो पर्पस क्या होगा? फूलों को तोड़ना। ओके। वन डे चीना गोज टू द गार्डन विथ अ बास्केट। ओके। सी इज गोइंग टू प्लक सम फ्लावर्स। वेयर सी इज गोइंग? विथ अ बास्केट। Obviously, she is going to pluck some flowers. Suddenly she stops. Suddenly she stops. चलते चलते का एक वो रुक जाती है। Look at the flowers in the garden. Look at the flowers in the garden. वो क्या देखती है? अपने आप में मतलब वो एक शौक हो जाती है फ्लावर्स को, गार्डन को देख के। क्यों शौक हो जाती है? ए फेयरी, फेयरी मीन्स यू नो फेयरी, आई थिंक यू हैव लर्न सो मेनी फेयरी टेल्स। परियों की कहानी तुम लोग बहुत जानते होंगे। तो फेयरी मीन्स परी। अ फेयरी इज टचिंग ऑल द फ्लावर्स। व्हाट वाज डूइंग द फेयरी? शी वाज टचिंग ऑल द फ्लावर्स।
ऑल द फ्लावर्स हैव टर्न ब्राउन, ऑल द फ्लावर्स हैव टर्न ब्राउन। जिस जिस फ्लावर्स को परी टच कर रही थी, तो परी के टच करने से फ्लावर क्या हो जाता था, ब्राउन कलर में बदल जाता था। किसी भी कलर का फ्लावर ब्राउन कलर में बदल जाता था। द ट्रीज एंड लीव्स आर ब्राउन एज वेल, फ्लावर तो बदल ही जाते थे ब्राउन कलर में, साथ ही साथ ट्रीज, पेड़ पौधे, लीव्स, यहाँ तक कि पत्ते जो कि हरे होते हैं जनरली, वो भी किस कलर के हो जाते थे, ब्राउन। ओह डियर द गार्डन इज ब्राउन, सी सेज, चीना सेज गार्डन इज ब्राउन, गार्डन का कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। ओके, द ट्रीज, द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑल आर ब्राउन, सब के सब, ट्रीज, फ्लावर्स, लीव्स ऑल आर ब्राउन, सारे किस कलर के हो गए, ब्राउन कलर के हो गए। चीना इज़ वेरी सैड एंड अ लिटिल अफ्रेड, यह देखकर चीना बहुत दुखी हो गई और थोड़ा सा डर भी गई। क्या देखकर कि सारा गार्डन ब्राउन हो गया, सारे ट्रीज, सारे पत्ते, सारे फ्लावर्स, सारे ब्राउन हो गए। सी डजंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ, वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ। ओके, सी डजंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। सी स्टार्ट्स क्राइंग, सी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगी। सडनली सी हियर्स अ वॉइस, एकाएक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। सडनली सी हियर्स ए वॉइस, वॉइस, आवाज़ क्या सुनाई देती है, वाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल, वाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल, क्यों रो रही हो तुम। चीना सीज अ सैड लुकिंग फेरी, चीना को क्या देखने को मिलता है, अब जब जब कोई आवाज़ आता है तो हम उस तरफ मुड़ के देखते हैं ना उधर, तो वो जब देखी तो क्या दिखा, अ सैड लुकिंग फेयरी, अ सैड लुकिंग फेयरी। फेयरी जनरली लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी चार्मिंग। ओके, फेयरी जो होती है कैसा जनरली दिखती है, बहुत ही चार्मिंग होती है, बहुत ही प्रिटी होती है। बट व्हाट हैपेंड हियर, हियर चीना sees a sad looking fairy, a sad looking fairy। Okay, the fairy is not smiling, fairy is not smiling, usually fairy smiles every time, usually fairy smiles every time, that's why it looks very pretty, it looks very beautiful, it looks very charming। But in this time fairy, what type of fairy it is, it is a sad looking fairy। the fairy is not smiling, वो स्माइल नहीं कर रही थी। जब कोई भी सैड होता है तो स्माइल करता है नहीं, जब हैप्पी रहता है तब आदमी स्माइल करता है, लेकिन जब सैड हो जाता है तो स्माइल नहीं करता। तो यहाँ पे फेयरी जो है वो क्या है, सैड है, इसलिए स्माइल नहीं कर रही है। चीना, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन, चीना फेयरी से क्या कहती है कि आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन, मैं ये जो ब्राउन कलर का गार्डन है इसको नहीं पसंद करती हूँ। आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक, मैं कलरफुल फ्लावर्स जो पहले था वही चाहती हूँ। फेयरी, द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो दैट यू डोंट प्लक देम, ये जो फ्लावर है ये ब्राउन हो गया है क्यों, ताकि तुम इसको नहीं तोड़ो। why these flowers became brown, the flowers have become brown so that you don't pluck them, ताकि तुम उस फ्लावर को नहीं तोड़ो। चीना, I pluck them because I like them, what China says, I pluck them because I like them, मैं इसलिए तोड़ती हूँ कि मुझे वो पसंद है। What China says, I pluck them because I like them। Fairy, now fairy says, they live longer if you don't pluck them, वो ज़्यादा दिन तक रहते, वो ज़्यादा दिन तक रहते, फ्लावर में यदि लगा हुआ रहता पेड़ में, यदि तुम नहीं तोड़ते तो वो ज़्यादा दिनों तक रहता। तुम तोड़ लेते हो जिस वजह से घर में यदि ऐसे भी जब हम कोई फ्लावर तोड़ लेते हैं तो वो कितना दिनों तक अच्छा लगता है मेरे पास, कुछ ही घंटों तक, उसके बाद वो मुरझाना स्टार्ट कर देता है।
ओके, वही फ्लावर जब पौधे में लगा हुआ रहता है तो वो ज़्यादा दिनों तक मतलब खिला हुआ रहता है, वो ज़्यादा दिनों तक रहता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ लेते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। फेयरी सेज दे लीव लॉन्गर इफ़ यू डोंट प्लक देम, यदि तुम नहीं तोड़ती तो ये ज़्यादा दिनों तक रहते। द अदर पीपुल लाइक टू सी देम टू, और भी लोग जो है फूलों को देखना पसंद करते हैं, और भी लोग जो है फूलों को देखना पसंद करती है, बट तुम तोड़ लेती हो। जिस चीना, आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक डियर फेयरी प्लीज़, वो रिक्वेस्ट करती, चीना रिक्वेस्ट्स टू फेयरी, आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक डियर फेयरी प्लीज़, प्लीज़ जो कलरफुल फ्लावर्स था वो मैं पुनः उसको वापस चाहती हूँ। फेयरी, विल यू प्रॉमिस नेवर टू प्लक फ्लावर्स अगेन, क्या तुम मेरे से प्रॉमिस करोगी, क्या तुम मेरे से प्रॉमिस करोगी कि तुम फिर दोबारा कभी भी फ्लावर नहीं तोड़ोगे। ओके, चीना, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, चीना प्रॉमिस कर लेती है कि वो कभी भी फ्लावर्स को अब नहीं तोड़ेगी। फेयरी, ऑल राइट देन द कलर्स विल बी बैक सून, ठीक है, जब तुम प्रॉमिस कर ली हो तो ठीक है, सारे कलर्स जो है वो जल्द ही वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता देखो। मदर, चीनाज मॉम, मदर सेज टू चीना, चीना गेट अप, चीना गेट अप, गेट अप मीन्स जग जाओ। ओके, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई। लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, चलो हम लोग पार्क चलें, चलो हम लोग पार्क चलें। देर आर सो मैनी प्रिटी फ्लावर्स, वहाँ पे बहुत सारे प्रिटी फ्लावर्स हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। चीना स्टिल लव्स फ्लावर, चीना अभी भी फूलों को पसंद करती है, बट नाउ शी डज नॉट प्लक देम, लेकिन अब वो उस फूलों को नहीं तोड़ती है। शी लुक्स एट देम एंड फील्स हैप्पी, ये वो जो है चीना फूलों को देखती है और खुश होती है, और खुश होती है। सी रिमेंबर्स हर प्रॉमिस, उसको अपना प्रॉमिस जो है याद है। चीना वॉन्ट्स द फ्लावर्स टू लिव एंड ग्रो, चीना वॉन्ट्स द फ्लावर्स टू लिव एंड ग्रो। नाउ व्हाट्स चीना वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स द फ्लावर्स टू लिव, फ्लावर जो है रहे, जिंदा रहे, तोड़ने के बाद वो क्या होता है, सूख जाता है, डाई कर जाता है। नाउ चीना वॉन्ट्स द फ्लावर्स टू लिव एंड ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रो मीन्स बढ़ना। Dear students, in this way you have read the story. Now it is time to solve the exercise. Before starting to solve the exercise, please read the chapter carefully and then solve the exercise. After completion of the exercise, submit the notebook in the school. Thank you.